فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اے پی میں جلد بننے والی نئی حکومت کے ساتھ تلنگانہ حکومت بہتر تعلقات بنائے گی۔ نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے ذریعے وہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی ترقی کے لیے مساعی کریں گے اور دونوں ریاستوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے نئی حکومت کے تعاون سے تروملا میں کلیانہ منڈپم گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور میں ریاست میں کسان خوش ہیں۔ انہوں نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ اے پی کے تروملا میں اپنے ارکان خاندان کے ساتھ درشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ریاست میں پانی کے مسائل حل کیے گئے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام کی خوشحالی اور ان ریاستوں کی ترقی کے لیے درشن کیا گیا۔ باکسر نکھت زرین نے جی ایچ ایم سی کمشنر رونالڈ روز سے بشکریہ ملاقات کی۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی کمشنر رونالڈ روز نے نکھت زرین کو اعزاز سے نوازا۔ حال ہی میں قازقستان میں منعقدہ ایلوڈا کپ میں 52 کلو گرام ویٹ لفٹنگ کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتنے والی باکسر نکھت زرین کو ان کے چیمبر میں شال پہنا کر خوش آمدید کہا گیا۔ گولڈ میڈل جیتنے پر انہیں مبارکباد دی۔ کمشنر نے مستقبل میں باکسنگ کے کھیل میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ حیدرآباد کا نام اور وقار مختلف سمتوں میں پھیلے اور ملک کی عزت کا لوہا منوایا جا سکے۔ حکومت کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور جی ایچ ایم سی بھی کھیلوں کے میدان کی ترقی کے لیے کام کر رہی۔ کمشنر نے کہا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی کھیلوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایک خصوصی سمر کوچنگ پروگرام بھرپور طریقے سے شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں جی ایچ ایم سی اسپورٹس کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس آر پریم راج، سابق خزانچی کے مہیشور، تلنگانہ باکسنگ ایسوسی ایشن کے صدر بابو راؤ ساگر اور دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی ایس آر ٹی سی اب ٹی ایس آر ٹی سی کے بجائے ٹی جی ایس آر ٹی سی میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ حال ہی میں مرکزی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں گزٹ اعلامیہ کی اجرائی کے بعد چیف سیکرٹری کی جانب سے ریاست کے تمام اداروں کو اپنے مخفف ٹی ایس کے بجائے ٹی جی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق تمام اداروں کے نام میں شامل ٹی ایس تلنگانہ کے بجائے اب ٹی جی تلنگانہ کیا جا رہا۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد اس نے مرکز سے درخواست کی تھی کہ تلنگانہ اسٹیٹ کے مخفف ٹی ایس کے بجائے ٹی جی کیا جائے، جس کی منظوری دیتے ہوئے مرکز نے حال ہی میں گزٹ اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اب تمام اداروں بشمول نئی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس پر بھی ٹی ایس کی جگہ اب ٹی جی ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ آر ٹی سی کا نیا لوگو جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ سیاحوں میں تعلیم اور بیداری کو فروغ دینے کے حصے کے طور پر حیدرآباد کے نہرو زوالوجیکل پارک میں بین الاقوامی حیاتیاتی تنوع کا دن منایا گیا۔ اے ناگمنی نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد ڈپٹی کیوریٹر نے کلے ماڈلنگ ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ تقریباً 800 سیاحوں نے کلے ماڈلنگ پروگرام میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے جنگلی جانوروں اور پرندوں کے ماڈلز ڈیزائن کرنے کی تربیت حاصل کی۔ زیادہ تر سیاحوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پروگرام بہت دلچسپ تھا اور ہر ایک پرجاتی کی اہمیت کے بارے میں سیکھا گیا۔ دوپہر کے سیشن میں آئی سی اے آر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ملیٹس ریسرچ حیدرآباد کے تعاون سے ونگز ایریا میں جوار کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش میں جوار کی 9 حقیقتوں کی نمائش کی گئی اور ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ مسروقہ موبائل فونز کا پتہ لگانے اور برآمد کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اوسطاً روزانہ 76 مسروقہ یا گم شدہ موبائل فونز برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں موبائل فونز کو برآمد کرنے میں تلنگانہ کو دوسرا مقام حاصل ہو چکا ہے۔ یہ بات پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتائی ہے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ 19 اپریل 2023 کو جبکہ سینٹرل اکوپمنٹ آئیڈینٹیٹی رجسٹر CIER پورٹل کا آغاز کیا گیا، ریاستی
पुलिस ने 30,049 मोबाइल डिवाइसेस बरामद किए हैं। मज़कूरा पोर्टल को महकमे मौसलात की जानिब से फ़रोग़ दिया गया ताकि मोबाइल फ़ोन्स के सरक़े की रोकथाम में मदद मिले। 35,945 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करने के साथ कर्नाटक को मुल्क में पहला मुकाम हासिल रहा, जबकि महाराष्ट्र को तीसरा मौक़िफ़ हासिल है, जहां पर मज़कूरा मियाद के दौरान 15,426 डिवाइसेस बरामद किए गए। आंध्र प्रदेश जहां पर 7,387 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए, चौथा मुकाम हासिल है। 17 मई 2023 को पोर्टल का सरकारी तौर पर आगाज़ किया गया, लेकिन 19 अप्रैल 2023 से तेलंगाना में पायलट बुनियादों पर यह शुरू किया गया। ये बात शेखा गोयल ने बताया, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस AGD-CID हैं, जिन्हें CEIR पोर्टल तेलंगाना के लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। विशाखापट्टनम लिंगमपल्ली जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अचानक रुक गई। सुबह 6:20 पर यह ट्रेन रवाना हुई, ताहम 2 मिनट बाद ही AC बोगी इससे अलहदा हो गई, जिस पर फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए रेलवे अमले ट्रेन को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ले आया। रेलवे के अहदेदारों ने कहा है कि तकनीकी मसाइल पर 2 बोगियां इंजन से अलहदा हो गई। बादशाह इन बोगियों को ट्रेन से जोड़ते हुए सुबह तकरीबन 9:30 बजे इस ट्रेन को इसकी मंजिल की सिमत रवाना कर दिया गया। इस वाक़े के सबब ये ट्रेन तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से चलाई जा रही है। वर्ल्ड स्किल मुकाबला दुनिया का सबसे बड़ा हुनर मुकाबला है, जो हर 2 साल में एक बार वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल के रुकन ममालिक में मुनक़िद होता है। ये मुकाबला दुनिया भर के नौजवानों में महारत के लिए ओलंपिक गेम्स के बराबर है। 80+ ममालिक की शिरकत के साथ आलमी महारत के मुकाबले में 70 से ज़ायद हुनर मरकज़ी सतह पर नोडल एजेंसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत MSDE की रहनुमाई और ताउन से हो रहा, हुकूमत हिंद की जानिब से हो रहा रियासती सतह पर नोडल एजेंसी महकमे रोजगार और तरबियत हुकूमत तेलंगाना एक नोडल एजेंसी के तौर पर रियासत तेलंगाना में 2018 से हुनर के मुकाबलों का इनेकाद कर रही है। हैदराबाद में जलपरियां देखी जा सकती हैं। शायद ये पढ़कर आपको हैरत होगी, लेकिन ये कोई हकीकी जलपरियां नहीं हैं, बल्कि शहर में नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जहां लड़कियां जलपरियों के रूप में नजर आ रही हैं। कुकटपल्ली मैरियन पार्क में मुनक़िदा नुमाइश में जलपरियों से मुत्तल्लिक़ एक ख़ुसूसी शो का एहतमाम किया गया। ये शो मुल्क भर में पहली बार हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। जब जलपरियां पानी में तैरते हुई नजर आती हैं तो ये मंजर देखने लायक होता है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।
तेलंगाना के जिले वरंगल में वाक़े मशहूर एमजेएम सरकारी अस्पताल में तकरीबन 5 घंटों तक बिजली की सप्लाई मुतासिर रही, जिससे डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक बिजली की सप्लाई में 4:30 बजे रुकावट पैदा हुई। ये बिजली 9:30 बजे ही बहाल हो पाई। इस दौरान कई वार्ड्स में मरीजों का शदीद गर्मी से बुरा हाल था, क्योंकि चंद दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। नर्सिंग हॉस्टल के अगबी सिमत बिजली के तारों पर पतंग का मांझा उलझ गया, जिसके नतीजे में बिजली के तार टूट गए। उनकी मरम्मत के दौरान बिजली की सप्लाई मुतासिर रही, जिससे बच्चों के वार्ड्स में ज़ेर इलाज बच्चे काफी मुतासिर रहे। बिजली सप्लाई के मुतासिर होने की वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिस पर रद्दमल जाहिर करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ऐसे वाक़यात के रोनुमा होने पर हंगामी तौर पर बिजली की मुतबादिल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, ताकि मरीजों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को धमकी आमेज पैगामात लिखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का नाम अंकित गोयल बताया जा रहा है। उसने दिल्ली मेट्रो में वज़ीर आला केजरीवाल के लिए धमकी आमेज पैगामात लिखे थे। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसे गिरफ्तार किया। मुलजिम बरेली का रहने वाला बताया जाता है और वो एक बैंक में मुलाजिम है। पुलिस के मुताबिक मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मुलजिम धमकी आमेज पैगाम लिखते हुए कैद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वो ज़हनी व जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है। बताया जा रहा है कि मुलजिम का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता वो केजरीवाल का हामी है और आम आदमी पार्टी की कई रैलियों में शिरकत कर चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल लेहान समेत दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तैयारे के जरिए तबरेज से तेहरान लाई गई। एयरपोर्ट पर जाँ बहक ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमा भी मौजूद थे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया भी इब्राहिम रईसी और दीगर हुक्काम की नमाज जनाजा में शरीक हुए। أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.